हेलो एवरीवन। हमने पिछले दिन माइटोसिस देखा था। आज मियोसिस देखते हैं। सो इन माइटोसिस वी सीन दैट इफ द सेल हैज टू डिवाइड, certain specific events has to take place within the cell for division. That means all the cells in our body does not divide continuously throughout their life. Even if plants where the growth is thought to be indeterminate, there also all the cells do not divide throughout their life. Only specific cells like shoot apical meristem, root apical meristem, and certain cambium, when they becomes active, then only they divide. In animal cells also, although all cells do not divide continuously throughout the life, means there the cells exit G1 phase, enter into a G0 phase, that is the quiescent state. Means in G0 phase the cells are metabolically active but do not divide further. In our most of the in our body, most of the cells are at G0 phase. सुनने में थोड़ा strange लगता है, लेकिन yes, this is true. Most of the cells in our body at G0 phase, they do not divide until called on to do so. Plants में भी क्या होता है? Plants also, meristematic cells which are left behind differentiate into primary meristematic cells. When they gain particular shape, size, and acquire to perform particular function, they differentiate into primary permanent. That process is called differentiation. When the primary permanent tissue again has to divide, lose particular shape, size, and lose the particular function, and again it has to enter into a cell division, then that primary permanent tissue de-differentiate into secondary meristem. That process is called de-differentiation. Again, that secondary meristematic tissue, after cell division, formation of so many cells, again if that cell has to enter into a stage where it does not want to divide, and that secondary meristem transformed into secondary permanent, that process is called redifferentiation. Differentiation, primary meristem into primary permanent, redifferentiation, secondary meristem into secondary permanent. In our body also, like heart cells, our heart is a clenched fist, means एक मुट्ठी के बराबर होता है. That the heart cells also do not divide. Liver cells can divide only if it is called to do so. If our liver got damaged, then it can divide. Neurons in our body, they do not divide further after birth, because they lose centriole after birth. So these cells which do not divide are present at a G0 phase. अब हम लोग मियोसिस देखते हैं. मियोसिस हमारे दो पार्ट्स में डिवाइड है, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2. मियोसिस 1, it is divided into prophase 1, and prophase 1 is further subdivided into 5 phases. Prophase 1 of meiosis 1 is the most complex and most longest phase of meiosis. Most dramatic phase of meiosis is prophase 1. So prophase 1 is subdivided into 5 subphases like leptotene, zygotene, pachytene, diplotin, diakinesis. After that, metaphase 1, anaphase 1, telophase 1. After that, the cell, after completing meiosis 1, again it has to go for meiosis 2. Then that phase will be called interkinesis. There RNA and ATP synthesis will take place, but DNA replication will not take place. We will discuss it. Meiosis 2 is again divided into prophase 2, metaphase 2, anaphase 2, telophase 2. So we will discuss this all in sequence. First we are taking prophase 1. So if we'll remember, if we'll think prophase of mitosis, we will come to the conclusion that in prophase nuclear membrane disappears, nucleolus disappears, body organelles, the cell organelles like mitochondria, Golgi bodies, these organelles disappear at the end of prophase 1. So nuclear membrane, nucleolus, cell organelles will disappear at the end of prophase 1. Condensation of chromosomes will start at the beginning of prophase, and it will continue throughout the prophase. Condensation of chromosomes will start at the beginning of prophase and it will continue throughout the prophase. So these are the basic idea we have through the prophase of mitosis.
So we will discuss leptotin, zygotin, pachytin, diplotin, diakinesis. अब हम लोग 5 सब फेजेस ऑफ प्रोफेज 1 को देखते हैं. दिस इज लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटिन, डिप्लोटीन, डायाकाइनेसिस. ठीक है, इसको हम लोग सीक्वेंस में देखते हैं. लेप्टोटीन में क्या होगा कि कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम्स विल स्टार्ट एट द बिगिनिंग ऑफ लेप्टोटीन एंड सर्टेन अमाउंट ऑफ क्रोमोसोम्स विल गेट कंडेंस्ड एट द एंड ऑफ लेप्टोटीन. कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम्स विल कंटिन्यू थ्रू आउट द लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटिन, डिप्लोटीन, डायाकाइनेसिस because these are the sub phases of prophase. So in prophase condensation of chromosomes takes place. At the end of diakinesis condensation of chromosomes will be completed. लेप्टोटीन में हो गया हमारा कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम्स विल टेक प्लेस. जाइगोटीन में क्या होगा? जाइगोटीन में हमारा जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स है, हमारे सोमेटिक सेल्स में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं जो कि पेयर्स में होते हैं, यानी कि वी हैव 46 क्रोमोसोम्स इन आवर सोमेटिक सेल्स दैट इज प्रेजेंट इन 23 पेयर्स. जब एक पेयर में 2 क्रोमोसोम्स होते हैं तो 23 पेयर्स में है हमारे क्रोमोसोम्स, और जो पेयर्स में है उसको बोला जाता है होमोलोगस क्रोमोसोम्स. होमोलोगस क्रोमोसोम्स हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स है, अगर मान लीजिए ये एक क्रोमोसोम्स है दैट इज आई एम टेकिंग बिफोर एस फेज. सो इन दिस क्रोमोसोम्स द डीएनए विल बी प्रेजेंट इन ए लीनियर मैनर. डीएनए विल बी प्रेजेंट इन ए लीनियर मैनर. दिस इज डीएनए. डीएनए इज प्रेजेंट इन ए लीनियर मैनर. Here the genes of certain characters will be present at specific locus. Suppose here gene is present for height, here gene is present for a particular character like color. So many genes will be present in the chromosome, in the DNA in a linear manner. If the genes which are present at a specific locus is present in other chromosomes at the same locus, and the gene and if this gene is specific for particular character, and the genes which is present at the same locus for same character, then these 2 chromosomes will be called homologous. Means all those genes, suppose this gene is for character height, this gene is for character color. So if in this chromosome also the gene here is present for same character, the gene here is present at same locus for same character, here also the gene is present at same locus for same character, then this is called homologous chromosome. Same character means it is not that if here the character is for tallness, means here also the character should be for tallness at same locus, but here it may be capital T, here it may be small t. So these 2 genes are called alleles. Alleles means belonging to each other. So these 2 genes specify same character but different forms of character. These 2 genes specify same character but different forms of character. These 2 genes specify for a character that is height, but this is for tallness. This character is specified for dwarfness. So all those genes. So if here all color, if here the gene is present for color, here it will be present for here if suppose it is gene present for red, here it is present for white. The genes, if here it is present for white, means these 2 genes present at same locus specify same character, means they are specifying for color, but here the gene is present for dominant, here the gene is present for recessive. It may be dominant also, if here it is capital C, it may here also it may be capital C. So these 2 are alleles of each other. These 2 genes are called alleles of each other. This I meant chromosome before S phase, but after S phase, our chromosome will be like this. I am taking it like this because complete condensation of chromosomes has not taken place yet. So I am not taking the fully condensed chromosome. I am taking the chromosome like this. Suppose here, see, before S phase, we have chromosome.
in lactotin a condensation of chromosomes take place. So small thread like chromosome we get in lactotin. Condensation of chromosomes will continue throughout the process. So this is before S phase. Alright. Suppose here the gene present for character height, and here it is capital T, here it is suppose capital B, small c, like this I have taken it. So after S phase, replication of DNA will take place. So there will be no any difference between this chromatid and this chromatid. The same chromatid will be duplicated at the end of S phase. So the genes which are present at this locus will be capital T. Here also it will be capital E. If it is capital B, it is also capital B. It is small c, it will be small c. Means the genes with the DNA which we have before S phase will be replicated. Replicated means there will be no change. It will be replicated as such. So after S phase we have chromosome like this. In zygote what will happen? The homologous chromosomes will start pairing to each other. Each homologous chromosome after S phase will be like this. Now I have said that homologous chromosomes it will have the genes at the same locus for same character but different forms, but it can have genes of different forms. Suppose here if it has a gene of height, here also it will have a gene of height at same locus, but it can be present in different forms. Means if it is capital T, it may be small t, but it will be for height only. If it is suppose B is for body weight, then it will be also for body weight only. It may be capital B, it may be small b. I am taking capital B. Here it is for color. Here it will also be for color. Means entire DNA the genes coding for a particular character, the same genes will be present at the same locus for same character, but it can be in the form of different form. Now homologous chromosomes will start pairing towards homologous chromosomes will start approaching each other, and that process is called synapsis. Means homologous chromosomes will start approaching towards each other. That process is called synapsis and leads to a complex structure that is called synaptonymal complex. Here a ladder like protein will be present that will hold the homologous chromosomes towards each other, that will lead to the formation of synaptonymal complex. जाइगोटिन में हमारा जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स है वो पास आना शुरू हो जाएंगे. अब पैकेटिन में क्या होगा? पैकेटिन के लिए मैं थ्रेड लाइक क्रोमोसोम्स बनाता हूं अच्छे समझने के लिए. पैकेटिन में क्या होगा कि जो हमारे जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स है, वो जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स के नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स है, वहां पर क्रोमेटिड्स का एक्सचेंज होगा. होमोलोगस क्रोमोसोम्स के जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं, उनके जो क्रोमेटिड्स है उनके बीच में हमारा एक्सचेंज होगा, जीन्स का एक्सचेंज होगा. एंजाइमेटिक एक्टिविटी है, एंडोन्यूक्लियस डीएनए लाइगेज एंडोन्यूक्लियस कट करने के लिए काम आएगा, डीएनए लाइगेज ज्वाइन करने के लिए काम आएगा. तो पैकेटिन में हमारा क्या होगा कि जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स के नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं उनका एक्सचेंज होगा, कुछ पार्ट का एक्सचेंज होगा. जैसे कि अगर मान लीजिए ये एक क्रोमोसोम है, तो ये दोनों तो सिस्टर क्रोमेटिड्स हुए, ये दोनों सिस्टर क्रोमेटिड्स है. टू क्रोमेटिड इक्विवेलेंट टू वन क्रोमोसोम, क्योंकि इसका प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन या फिर सेंट्रोमियर तो एक ही है, तो ये हो गया हमारा टू क्रोमेटिड्स इक्विवेलेंट टू वन क्रोमोसोम. ये भी हो गया हमारा, इसको ब्लैक मार्कर से बना देते हैं. ये हो गया हमारा टू क्रोमेटिड्स इक्विवेलेंट टू वन क्रोमोसोम. बिफोर S phase we had one chromatid equivalent to one chromosome. एक्चुअली ये पार्शियली कॉन्डेंस्ड क्रोमोसोम है ना, तो ये तो अभी मैं ऐसे बना दिया हूँ पैकेटिन में क्रॉसिंग ओवर को अच्छे से समझने के लिए. लेकिन अगर ये क्रोमोसोम्स को अगर हम ऐसे बनाए, अगर
तो एस फेज में जब ये एस फेज की अगर बात करें तो ये है हमारा वन क्रोमेटेड इक्विवेलेंट टू वन क्रोमोसोम। अगर इसको ऐसे बनाए तो अभी हमारा क्या हो गया, टू क्रोमेटिड्स इक्विवेलेंट टू वन क्रोमोसोम्स, टू क्रोमेटिड इक्विवेलेंट टू वन क्रोमोसोम्स। क्रोमेटिड के लिए हम लोग यूज करते हैं आयार और क्रोमोसोम्स के लिए यूज करते हैं हम लोग वैलेंट। तो ये क्या हो गया, मोनाड इक्विवेलेंट टू मोनोवैलेंट, मोनाड इक्विवेलेंट टू मोनोवैलेंट, वन क्रोमेटिड इक्विवेलेंट टू वन क्रोमोसोम्स। ये हो गया डायड, दो क्रोमेटिड्स इक्विवेलेंट टू वन क्रोमोसोम्स मींस डायड इक्विवेलेंट टू मोनोवैलेंट, डायड इक्विवेलेंट टू मोनोवैलेंट। लेकिन जाइगोटिन में क्या हो गया कि दो होमोलोगस क्रोमोसोम्स पास पास आना शुरू हो गए। जब साइनोप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बन गया तो अब यहां पर क्या होगा, टेट्राड, फोर क्रोमेटिड्स मींस टेट्राड, टेट्राड इक्विवेलेंट टू बाइवैलेंट मींस दो क्रोमोसोम्स है तो टेट्राड इक्विवेलेंट टू बाइवैलेंट। अब मैं इसको थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बना देता हूं पैकेटिन स्टेज को ठीक से समझने के लिए। अब यहां पर इसके जिस जिस लोकस पर जिस जिस कैरेक्टर के जीन्स होंगे उसी उसी लोकस पर इसके भी उसी लोकस पर उसी कैरेक्टर के जीन होंगे। तो मैं यहां पर मान लेता हूं कि यहाँ पर हाइट के लिए कैपिटल टी है, कलर के लिए कैपिटल सी है और बॉडी वेट के लिए इस कैपिटल बी है। और यहाँ पर हम मान लेते हैं कि हाइट के लिए स्मॉल टी है, कलर के लिए कैपिटल सी है और बॉडी के लिए स्मॉल बी है। कुछ भी हो सकता है लेकिन उसी कैरेक्टर का जीन उसी लोकस पर होना चाहिए। तो ये दोनों तो हुए हमारे सिस्टर क्रोमेटिड्स, ये दोनों इस क्रोमोसोम्स के हुए सिस्टर क्रोमेटिड्स और ये दोनों हुए होमोलोगस क्रोमोसोम्स के नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स। तो पैकेटिन में क्या होगा कि क्रॉसिंग ओवर विल टेक प्लेस बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स, क्रॉसिंग ओवर विल टेक प्लेस नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स। मींस अगर इन दोनों के बीच में क्रॉसिंग ओवर होता है, ये और ये जो जीन्स है जो हमारे हाइट के लिए जीन्स है, अगर ये कैपिटल टी और स्मॉल टी के बीच में अगर हमारा क्रॉसिंग ओवर होता है तो कैसा दिखेगा। एंजाइमेटिक एक्टिविटी है, एंडोन्यूक्लियस और डीएनए लाइगेज यूज होते हैं हमारे। तो मैं ठीक से उतना अच्छा से बना नहीं पा रहा हूं, लेकिन ये जो कैपिटल टी है और ये स्मॉल टी है, अगर आप ऐसे देखें तो इसको थोड़ा बड़ा करते हैं। तो यहां पर डीएनए सेगमेंट का एक्सचेंज होगा। यहां पर जो कैपिटल टी था, ये जो क्रोमेटिड है ये स्प्लिट हो जाएगा और ये इससे जुड़ जाएगा और ये जो क्रोमेटिड है स्प्लिट होकर इसमें जुड़ जाएगा। मतलब देखने में अभी बहुत बड़ा सा सेगमेंट लग रहा है, लेकिन एक जीन के इक्विवेलेंट ये जो क्रोमेटिड है ये टूटकर इसमें ज्वाइन हो जाएगा और ये जो क्रोमेटिड है एंडोन्यूक्लियस इसको कट करके और डीएनए लाइगेज से इसमें जोड़ देगा। तो हमारा कैसा बन जाएगा, हमारा जो लास्ट में जो बचेगा देखने में कैसा लगेगा, ऐसा। और ये ऐसा। मतलब अभी अलग अलग नहीं हुए, मैं तो अभी पहले अलग अलग करके बता दिया कि ये ऐसे हो जाएंगे बाद में क्रॉसिंग ओवर के चलते। ये ऐसे क्रोमोसोम्स का जो क्रोमेटिड है वो एक्सचेंज पार्ट ऐसे दिखेंगे, लेकिन अभी अभी अलग नहीं हुए। मैं तो रिजल्ट बता रहा हूँ कि इसका रिजल्ट ये होगा। तो पैकेटिन में हमारा जो हुआ, जो जीन्स या फिर क्रोमेटिड्स का एक्सचेंज हुआ बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स। हमने लेप्टोटीन पढ़ा, जाइगोटीन पढ़ा। जाइगोटीन में दो होमोलोगस क्रोमोसोम्स पास पास आएंगे, साइनोप्सिस दैट इज कॉल्ड साइनेप्सिस लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। पैकेटिन में नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स जो है वो होमोलोगस क्रोमोसोम्स के उनमें हमारा जो क्रॉसिंग ओवर होगा, क्रॉसिंग ओवर से जो क्रोमेटिड्स का एक्सचेंज होगा। अब डिप्लोटीन में क्या होगा कि जो हमारे जो क्रॉसिंग, अब डिप्लोटीन में क्या होगा कि जहां पर जो हमारे जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स थे
non-sister chromatids of homologous chromosomes where the crossing over has taken place. Now the homologous chromosomes will start moving away from each other. मतलब डिप्लोटीन में क्या होगा कि जो हमारा जो साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बना था वो डिसोल्यूशन होना शुरू हो जाएगा, लेकिन कंप्लीट जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स थे वो कंप्लीट दूर नहीं हो जाएंगे। एक पोजीशन होगा जहां पर वो अभी भी अटैच होंगे और वो होगा हमारा एट द साइट ऑफ क्रॉसिंग ओवर, दैट इज कॉल्ड चिasmata। मतलब जो अभी जो हमारे जो क्रोमोसोम्स हैं, हमारा जो क्रोमोसोम्स था वो हमारा अब होमोलोगस क्रोमोसोम्स अलग अलग होना शुरू हो गया, लेकिन जहां पर क्रॉसिंग ओवर हुआ है वो दोनों अभी भी उस पोजीशन पर अटैच्ड है, उसको बोलेंगे हम लोग एक्सेप्ट स्ट्रक्चर, दैट इज कॉल्ड चिasmata। So in diplotin dissolution of synaptonimal complex will start, but the homologous chromosomes will not get completely separate. They will be joined at a place where crossing over had taken place, that is called chiasmata। मतलब पैकेटिन में तो क्रॉसिंग ओवर हुआ, लेकिन उसका रिजल्ट हमको उसका कंफर्मेशन कब मिला कि इस पॉइंट पर क्रॉसिंग ओवर हुआ और डिप्लोटिन है। डिप्लोटिन में हमको पता चलेगा कि इस जगह पर क्रॉसिंग ओवर हुआ, क्योंकि पैकेटिन में क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर इस पोजीशन ऐसे होता है कि हमको पता नहीं चलता है, एक क्रोमोसोम्स का ये आर्म ऐसे मिल जाता है कि हमको पता नहीं चलता कि किस जगह पर क्रॉसिंग ओवर हो रहा है। लेकिन जब डिप्लोटिन में जब दो होमोलोगस क्रोमोसोम्स अलग होना शुरू हो जाते हैं तो वो उसी पोजीशन पर ज्वाइन रहते हैं जहां पर क्रॉसिंग ओवर हुआ है। ऐसा नहीं कि सिर्फ इसी पोजीशन पर क्रॉसिंग ओवर हुआ, सकता है यहां पर हो जाए, यहां पर हो जाए, तो पैकेटिन में पता नहीं चल पाता है कि किस किस जगह पर क्रॉसिंग ओवर हो रहा है। लेकिन डिप्लोटिन में क्लियरली पता चल जाता है कि जो पार्ट क्रॉसिंग ओवर में हिस्सा नहीं लिए वो तो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएंगे, और जो पार्ट क्रॉसिंग ओवर में पार्टिसिपेट किए थे वहां पर अभी वो दोनों क्रोमोसोम्स, वो दोनों आर्म्स जो होंगे नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स विल बी जॉइंड टू ईच अदर इन द केस ऑफ डिप्लोटिन। तो हमारे लिए डिप्लोटिन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जिस जगह पर क्रॉसिंग ओवर हुआ उसका हमको पता चलता है डिप्लोटिन में। पैकेटिन में तो क्रॉसिंग ओवर एक्चुअली टेक प्लेस, बट द रिजल्ट ऑफ क्रॉसिंग ओवर वी फाइंड एट डिप्लोटिन। अब डायकाइनेसिस में क्या होगा कि डिसोल्यूशन ऑफ साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स विल टेक प्लेस, मतलब अब जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स थे वो पूरा के पूरा अलग हो जाएंगे। अब क्रॉसिंग ओवर के बाद इसका जो क्रोमेटिड था वो ये बेयर करने लगा, इसका जो पार्ट ऑफ क्रोमेटिड है वो ये बेयर करने लगा, मतलब क्रॉसिंग ओवर हो गया। डायकाइनेसिस के बाद अब जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स थे वो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएंगे, अपने से दूर दूर चले जाएंगे। अब ये तो था हमारा प्रोफेज 1 के अंदर, तो हमने ये प्रोफेज 1 में पढ़ा। अब डायकाइनेसिस के बाद हमारा जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस एंड ऑल अदर ऑर्गेनल्स ऑफ सेल विल डिसइंटीग्रेट। ठीक, अब हम लोग पढ़ते हैं मेटाफेज 1। After completing prophase 1, we will move towards metaphase 1. अब metaphase 1 शुरू करने से metaphase 1 of meiosis, after beginning of metaphase 1 of meiosis 1, if we remember the metaphase of mitosis, तो माइटोसिस में क्या हुआ था कि एक मेटाफेजिक प्लेट बना था जिसमें 46 क्रोमोसोम्स अलाइन हो गए थे, क्रोमोसोम 1 2 3, तो ऐसे 46 क्रोमोसोम्स एक मेटाफेजिक प्लेट पर अलाइन हो गए थे। लेकिन अब मेटाफेज 1 ऑफ मियोसिस में 1 में क्या होगा कि होमोलोगस क्रोमोसोम्स डबल मेटाफेजिक प्लेट पर अलाइन हो जाएंगे। अब अगर होमोलोगस क्रोमोसोम्स डबल मेटाफेजिक प्लेट पर अलाइन होते हैं तो एक मेटाफेजिक प्लेट पर कितने क्रोमोसोम्स आएंगे, 23 क्रोमोसोम्स, और दूसरे मेटाफेजिक प्लेट पर कितने आएंगे, 23 क्रोमोसोम, मींस क्रोमोसोम नंबर 1 और उसका होमोलोगस क्रोमोसोम। तो एक मेटाफेजिक प्लेट और दूसरा मेटाफेजिक प्लेट में क्रोमोसोम नंबर 1 उसका होमोलोगस क्रोमोसोम, क्रोमोसोम नंबर 2 उसका होमोलोगस क्रोमोसोम, क्रोमोसोम नंबर 3 उसका होमोलोगस क्रोमोसोम। तो इन मेटाफेज 1 ऑफ meiosis 1 the 23 pair of chromosomes will be aligned at double metaphasic plate। तो हमारा ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा। मेटाफेज 1 में क्या होगा, मेटाफेज 1 में अगर हम मान लेते हैं सेल, ये एक मेटाफेजिक प्लेट, ये एक प्रोफेज 1 में क्या होगा कि स्पिंडल फाइबर्स और एस्टर रेस
वगैरह बन जाएंगे और वो दे विल स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स द पोल्स ऑफ द सेल। हम यहाँ पर एक बेसिक आइडिया डिस्कस कर रहे हैं, बेसिक चीज डिस्कस कर रहे हैं, पूरे डिटेल पे हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, ठीक। अब यहाँ पर डबल मेटाफेजिक प्लेट, यहाँ पर क्रोमोसोम नंबर 1 उसका होमोलोगस क्रोमोसोम, क्रोमोसोम नंबर 2 उसका होमोलोगस क्रोमोसोम नंबर 3 उसका होमोलोगस क्रोमोसोम। और यहाँ पर सेंट्रियोल्स होंगे, एस्टर रेस होंगे, माइक्रोट्यूब्यूल्स या फिर स्पिंडल फाइबर, माइक्रोट्यूब्यूल्स की ऑर्गेनाइज इनटू स्पिंडल फाइबर, ये ऐसे जुड़ जाएंगे ऑपोजिट पोल से, इसके काइनेटोकोर से, इसके काइनेटोकोर से। यहाँ पर भी चलिए इसको अभी रन देते हैं। तो ये डबल मेटाफेजिक प्लेट में हमारा जो 23 क्रोमोसोम्स, ऐसे 23 क्रोमोसोम्स होंगे और यहाँ पर भी 23 क्रोमोसोम्स होंगे, यानी कि हमारा 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स डबल मेटाफेजिक प्लेट में अलाइन हो गए मेटाफेज 1 ऑफ मियोसिस 1 में। तो ये क्रोमोसोम नंबर 1 इसका होमोलोगस क्रोमोसोम, क्रोमोसोम नंबर 2 इसका होमोलोगस क्रोमोसोम। अब मेटाफेज 1 के बाद आता है हमारा एनाफेज 1। एनाफेज 1 और अब एनाफेज ऑफ माइटोसिस में क्या हुआ था कि सेंट्रोमियर स्प्लिट हुआ था। सेंट्रोम जो 46 क्रोमोसोम्स एक मेटाफेजिक प्लेट में अलाइन हुए थे, वहां पर क्या हुआ था कि सेंट्रोमियर स्प्लिट हुए थे और जो दो क्रोमेटिड्स थे वो सेपरेट हो गए थे। लेकिन यहाँ पर क्या होगा कि सेंट्रोमियर स्प्लिट नहीं होगा, जो दो होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं जो 23 पेयर्स में वो सेपरेट हो जाएंगे, यानी कि यहाँ पर क्रोमेटिड्स का सेपरेशन नहीं होगा, यहाँ पर होमोलोगस क्रोमोसोम का सेपरेशन होगा। मतलब ये जो टेट्राड है, ये जो डायड है, ये दो क्रोमेटिड्स है ना, ये एक क्रोमेटिड, ये दो क्रोमेटिड, ये जो डायड है ये उधर मूव करना शुरू कर देगा, ये डायड इधर मूव करना शुरू कर देगा, यानी कि ये क्रोमोसोम नंबर 1, कंप्लीट क्रोमोसोम नंबर 1, यहाँ पर सेंट्रोमियर का स्प्लिटिंग नहीं होगा। ये क्रोमोसोम नंबर 1 कंप्लीटली 1 पोल पर जाएगा, उसका होमोलोगस क्रोमोसोम कंप्लीटली इस पोल पर आएगा। क्रोमोसोम नंबर 2 अपोजिट पोल पर जाएंगे, इसके होमोलोगस क्रोमोसोम्स इस पोल पर जाएंगे। तो ऐसा होगा हमारा एनाफेज 1 में। तो एनाफेज 1 में रिजल्ट हमको कैसा मिलेगा? अगर हम एनाफेज 1 की बात करें, एनाफेज 1 ऑफ मियोसिस 1, तो ये हमारा सेल रहा और यहां पर पहुंच गए हमारे 23 क्रोमोसोम्स। यहां पर हमारे पहुंच गए 23 क्रोमोसोम्स एक पोल में, 23 क्रोमोसोम्स एक पोल में। मतलब कि separation of chromosomes take place, means reduction of chromosomes take place at anaphase, but the result we will get after this stage। मतलब देखिए क्रोमोसोम्स का तो हाफ इस एनाफेज 1 के वजह से ही होगा, लेकिन अभी क्रोमोसोम हाफ नहीं, अभी तो ये कंप्लीट सेल, इसमें भी 46 क्रोमोसोम्स है, 23 क्रोमोसोम एक पोल में, 23 क्रोमोसोम्स एक पोल में। लेकिन एनाफेज 1 के वजह से ही, एनाफेज 1 के वजह से ही क्रोमोसोम नंबर हमारा आगे चलकर हाफ हो जाएगा। अगर ये नहीं होता तो क्रोमोसोम नंबर हाफ नहीं होता मियोसिस 1 में। अब हमारा क्या होगा कि यहां पर सेंट्रियोल्स हैं, एस्टर रेस, माइक्रोट्यूब्यूल्स। अब एनाफेज 1 के बाद हमारा था टीलोफेज 1। टीलोफेज में क्या होगा? इट इज जस्ट इनवर्स ऑफ प्रोफेज 1। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन स्टार्ट reappear, nucleolus will start reappear, those organelles which were disintegrated at prophase 1 will start reappearing at the end of telophase 1। तो हमारे यहाँ पर कितने गए? 23 क्रोमोसोम्स, यहाँ पर कितने गए? 23 क्रोमोसोम्स। अब अगर साइटोकाइनेसिस होता है, तो हमारा क्या बनेगा? ये एनिमल सेल है तो कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग बनेगा जो कि सेंट्रीपिटल होता है। तो सेंट्रीपिटल होगा तो ये ऐसे धर के 23 क्रोमोसोम्स एक सेल में चले जाएंगे, 23 क्रोमोसोम्स एक सेल में चले जाएंगे। अब मेटाफेज 1 और एनाफेज 1 का एक इंपॉर्टेंट बात करते हैं जेनेटिक्स के बिहाफ पर। देखिए हमारे बॉडी पर 46, हमारे एक सेल में 46 क्रोमोसोम्स है। तो 23 क्रोमोसोम्स हैव कम फ्रॉम मदर एंड 23 क्रोमोसोम्स हैव कम फ्रॉम फादर। तो 23 क्रोमोसोम्स तो मदर का है, 23 क्रोमोसोम्स फादर का है। अब इसमें से अगर क्रोमोसोम नंबर 1 मदर का है, अगर वो
अगर ये मेटाफेजिक प्लेट 1 मान लेते हैं और इसको मेटाफेजिक प्लेट 2 मान लेते हैं, अगर ये क्रोमोसोम नंबर 1 मदर का है और ये क्रोमोसोम तो उसका होमोलोगस क्रोमोसोम तो ऑब्वियसली फादर से आया होगा, तो ये होमोलोगस क्रोमोसोम, ये जो क्रोमोसोम नंबर 1 मदर वाला जो है मेटाफेजिक प्लेट 1 पर अलाइन हुआ, और उसका जो होमोलोगस क्रोमोसोम 1 जो कि ऑब्वियसली फादर से आया होगा, अगर ये मदर से आया तो ये फादर से आया होगा, और ये मेटाफेजिक प्लेट 2 पर अलाइन हुआ है। अब देखिए अगर ये क्रोमोसोम नंबर 2 है और अगर ये फादर वाला यहाँ पर अलाइन हुआ, ये वाला मदर वाला, तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि एक क्रोमोसोम दूसरे क्रोमोसोम से इंडिपेंडेंट है ना। ये मदर वाला यहाँ पर क्रोमोसोम नंबर 1 मेटाफेजिक प्लेट 1 पर अलाइन हुआ, फादर वाला क्रोमोसोम नंबर 1 मेटाफेजिक प्लेट 1 पर अलाइन हुआ, फिर हो सकता है मदर वाला यहाँ पर अलाइन हो क्रोमोसोम नंबर 3 हो, यहाँ पर फादर वाला अलाइन हो, यानी कि यहाँ पर कौन सा क्रोमोसोम लग रहा है वो इंडिपेंडेंट है कि यहाँ पर कौन क्रोमोसोम मदर वाला आ रहा है, फादर वाला आ रहा है, किसका वाला आ रहा है, वो हम ये वाला क्रोमोसोम इन चीजों से इंडिपेंडेंट है। यहीं पर आता है इंडिपेंडेंट सेग्रीगेशन, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, इंडिपेंडेंट जो मेंडल ने दिया था इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, वो यहीं से आता है कि ये वाला क्रोमोसोम्स इन सभी क्रोमोसोम्स से इंडिपेंडेंट है कि यहाँ पर कौन सा क्रोमोसोम्स लग रहा है, इससे ये वाला क्रोमोसोम्स इंडिपेंडेंट है। अगर क्रोमोसोम नंबर 2 अगर फादर वाला यहाँ लग रहा है तो यहाँ पर कोई भी लग सकता है, ये अपने आप में इंडिपेंडेंट है, मदर वाला भी आ सकता है, फादर वाला भी आ सकता है। क्रोमोसोम नंबर 3 इंडिपेंडेंट है कि क्रोमोसोम नंबर 2 और क्रोमोसोम नंबर 1 से, क्रोमोसोम नंबर 2 से इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि यहाँ पर मदर वाला क्रोमोसोम आया है कि मदर फादर वाला आया है, ये उस चीज से इंडिपेंडेंट, यहाँ पर मदर वाला भी आ सकता है या फादर वाला भी आ सकता है। अगर यहाँ मदर वाला आता है तो यहाँ फादर वाला आएगा, अगर यहाँ फादर वाला आता है तो यहाँ फादर वाला आएगा। तो ये होगा हमारा इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। और सेग्रीगेशन ऑफ एलील्स या फिर सेग्रीगेशन ऑफ मेंडेलियन फैक्टर्स विल टेक प्लेस एट एनाफेज 1, क्योंकि मेंडेलियन फैक्टर्स जो था हमारा वो तो पेयर में था ना, ये तो एस फेज के बाद हमारा ऐसा बन गया ना। तो यहाँ पर जो जीन्स होंगे सेम टू सेम, अगर ये कैपिटल टी है तो यहाँ पर भी कैपिटल टी होगा, क्योंकि ये तो सिस्टर क्रोमेटिड्स है ना। अगर यहाँ पर कैपिटल सी है तो यहाँ पर कैपिटल सी होगा। ये दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं, तो यानी कि यहाँ पर जो जीन्स होंगे वो सेम कैरेक्टर के होंगे लेकिन डिफरेंट फॉर्म के हो सकते हैं। तो हो सकता है ये स्मॉल टी हो, लेकिन यहाँ पर तो स्मॉल टी ही होगा क्योंकि दोनों सिस्टर क्रोमेटिड्स है। ये तो इससे डुप्लीकेशन से बना है ना एस फेज में। अगर यहाँ पर कैपिटल सी हो तो हो सकता है यहाँ पर स्मॉल सी हो। तो यहाँ पर क्या होगा कि सेग्रीगेशन ऑफ मेंडेलियन कैरेक्टर हो गया ना, सेग्रीगेशन ऑफ मेंडेलियन फैक्टर्स हो जाएगा। यहाँ पर अगर कैपिटल टी गया तो यहाँ पर स्मॉल टी आया, अगर यहाँ पर कैपिटल टी गया तो यहाँ पर हमारा स्मॉल टी आया। तो सेग्रीगेशन ऑफ मेंडेलियन फैक्टर्स टेक्स प्लेस एट एनाफेज 1 एंड इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट मेटाफेज 1 इज द बेसिस फॉर इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ मेंडेलियन फैक्टर्स। ये हमने बात किया मियोसिस 1 के बारे में। अब मियोसिस 1 के बाद अब इसको फिर से मियोसिस 2 करना है। तो मियोसिस 1 के बाद अब एक स्टेज आता है जिसको बोलते हैं इंटरकाइनेसिस। इंटरकाइनेसिस में क्या होता है कि सेल आरएनए और एटीपी सिंथेसिस करता है, लेकिन डीएनए का डुप्लीकेशन नहीं होता है। क्योंकि अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एनाफेज 1 में अभी डायड पहुंचा है, यहाँ पर सेंट्रोमियर का स्प्लिटिंग नहीं हुआ ना, सेंट्रोमियर का स्प्लिटिंग नहीं हुआ, होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट हुए। तो अब यहाँ पर डीएनए का रेप्लिकेशन कैसे होगा, क्योंकि पहले से ही रेप्लिकेटेड डीएनए दोनों क्रोमेटिड्स पहुंचे, एक क्रोमेटिड नहीं पहुंचे कि फिर से उनका डुप्लीकेशन हो जाएगा। तो यहाँ पर डीएनए का डुप्लीकेशन नहीं होता है क्योंकि पहले से ही डायड है, तो अब उसका डुप्लीकेशन अभी हो नहीं पाएगा। तो आरएनए सिंथेसिस होगा, ग्रोथ होगा, एटीपी सिंथेसिस होगा, लेकिन डीएनए का डुप्लीकेशन नहीं होगा इंटरकाइनेसिस में। मैं यहां लिख देता हूं इंटरकाइनेसिस। आरएनए and ATP synthesis will take place, growth will take place, no duplication of DNA or chromosomes, means no replication of chromosomes will take place at interkinesis। अब इसके बाद हमारा शुरू होता है मियोसिस 2। मियोसिस 2 अभी हम ओवरव्यू देख लेते हैं। मियोसिस 2 इज सिमिलर टू मेटाफेज।
सॉरी, मियोसिस 2 इज सिमिलर टू माइटोसिस। अब मियोसिस 2 में क्या क्या है, प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2, टीलोफेज 2। तो प्रोफेज 2 सिमिलर टू प्रोफेज ऑफ माइटोसिस होगा। प्रोफेज ऑफ माइटोसिस में क्या होता था कि जो हमारा जो कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम्स है, वो विल टेक प्लेस। इंटरकाइनेसिस में क्या होता है कि डीकंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम्स होता है हमारा। डीकंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम्स विल हैपन एट इंटरकाइनेसिस, लेकिन जो हमारा क्रोमोसोम्स है वो कंप्लीटली डीकंडेंस नहीं होते हैं। बहुत सारे केसेस में जो हमारे जो क्रोमोसोम्स है वो कंप्लीट डीकंडेंस नहीं होते हैं, पार्शियली कंडेंस्ड फॉर्म में रहते हैं। तो हमारा जो प्रोफेज 2 ऑफ मियोसिस 2 में क्या होगा कि कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम्स अगेन विल टेक प्लेस। दोज अगर डीकंडेंसेशन हुआ है अगर इंटरकाइनेसिस में, तो फिर से कंडेंसेशन होने लगेगा प्रोफेज 2 ऑफ मियोसिस 2 में। इसके बाद फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस, जो कि हमारा टीलोफेज 1 ऑफ मियोसिस 1 में जो हमारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस और जो सेल ऑर्गेनल्स जो कुछ रीअपियर हो गए तो फिर से डिसअपियर होना शुरू हो जाएंगे प्रोफेज 2 ऑफ मियोसिस 2 में। अब मेटाफेज 2 की बात करते हैं। मेटाफेज 2 भी मेटाफेज ऑफ माइटोसिस के जैसा ही है, लेकिन मेटाफेज ऑफ माइटोसिस में क्या हुआ था कि एक सिंगल मेटाफेजिक प्लेट बने थे, उसमें 46 क्रोमोसोम्स अलाइन हुए थे। लेकिन यहां पर क्या हुआ, यहां पर तो एक सेल के पास 23 क्रोमोसोम्स हुए ना, तो यहां पर एक मेटाफेजिक प्लेट पर कितने क्रोमोसोम्स अलाइन हो पाएंगे, 23 क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम नंबर 1 2 3, तो ऐसे 23 क्रोमोसोम्स ही तो अलाइन हो पाएंगे। और उसका जो होमोलोगस क्रोमोसोम था वो तो दूसरे सेल के पास चला गया ना, तो उसमें भी अब अगर मियोसिस 2 हो रहा है और उसमें मेटाफेज 2 अभी चल रहा है, तो उसमें भी एक मेटाफेजिक प्लेट बनेंगे जिसमें 23 क्रोमोसोम्स अलाइन होंगे। तो मेटाफेज 2 ऑफ मियोसिस 2 में क्या होगा कि 23 क्रोमोसोम्स अलाइन होंगे। अब एनाफेज 2 ऑफ मियोसिस 2 और एनाफेज ऑफ माइटोसिस एक ही जैसे होंगे। वहां पर क्या होता है कि 46 क्रोमोसोम्स में जो सेंट्रोमियर थे वो स्प्लिट हुए थे, सेंट्रोमियर स्प्लिट हुए थे। यहां पर 23 क्रोमोसोम्स एक मेटाफेजिक प्लेट में थे, तो यहां पर एनाफेज 2 ऑफ मियोसिस 2 में क्या होगा कि 23 क्रोमोसोम्स में सेंट्रोमियर स्प्लिट होंगे और वो ऑपोजिट पोल की तरफ मूव करना शुरू हो जाएंगे। अब अगर यहां पर अगर सेंट्रोमियर स्प्लिट करते हैं तो अब ये केस हो जाएगा क्या, 1 क्रोमेटिड बराबर 1 क्रोमोसोम। अभी कैसे थे बिफोर एनाफेज 2 ऑफ मियोसिस 2 कैसा था, 2 क्रोमेटिड्स बराबर 1 क्रोमोसोम्स। एनाफेज 2 ऑफ मियोसिस 2 के बाद ये हो जाएगा हमारा 2 क्रोमेटिड्स बराबर 2 क्रोमोसोम। मतलब एक सेल में कितने क्रोमोसोम्स हो जाएंगे, 46 क्रोमोसोम नंबर डबल हो जाएंगे। अब मेटाफेज 2 के पहले कितने थे, 23 क्रोमोसोम्स। एनाफेज 2 के बाद कितने हो जाएंगे, सेंट्रोमियर स्प्लिट होने के बाद 46 क्रोमोसोम्स हो जाएंगे एक सेल में। अगर ये दूसरा सेल बना था मियोसिस 1 के बाद, तो एनाफेज 2 के बाद इसमें भी कितने हो जाएंगे, 23 क्रोमोसोम्स इधर, 23 क्रोमोसोम इधर, 46 क्रोमोसोम। मतलब क्रोमोसोम नंबर डबल हो गया किसके कंपैरिजन में, मियोसिस 1 के बाद जो हमको मिला था उसके कंपैरिजन में अभी हमारा क्रोमोसोम नंबर डबल हो गया। तो ये हो गया एनाफेज 2। अब टीलोफेज 2 में क्या होगा कि जो हमारे जो 23 क्रोमोसोम्स यहां पहुंचे, 23 क्रोमोसोम्स यहां पहुंचे एक सेल में, तो फिर से टीलोफेज 2 ऑफ मियोसिस 2 इज सिमिलर टू टीलोफेज ऑफ माइटोसिस। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपियर होना शुरू हो जाएगा, न्यूक्लियोलस रीअपियर होना शुरू हो जाएगा, बॉडी जो सेल ऑर्गेनल्स थे वो हमारा रीअपियर होना शुरू हो जाएंगे। तो इसको देख लेते हैं एक बार शॉर्ट में। प्रोफेज 2 ऑफ मियोसिस 2, तो प्रोफेज 2 में सेम टू सेम यही प्रोसेस होगा। अगर कुछ डीकंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम्स अगर हो गया है इंटरकाइनेसिस में या फिर टीलोफेज 2 में, तो उनका फिर से कंडेंसेशन होगा। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस जो रीअपियर हो गए थे टीलोफेज 1 ऑफ मियोसिस 1, तो अब यहां पर क्या होंगे, डिसअपियर होना शुरू हो जाएंगे प्रोफेज 2 ऑफ मियोसिस 2 में। यानी कि हम लिख देते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर्स। सेम टू सेम वही है जो हमने प्रोफेज ऑफ माइटोसिस के बारे में पढ़ा था। न्यूक्लियोलस आल्सो डिसअपियर्स, सेल ऑर्गेनल्स लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी, ईटीसी विल डिसअपियर। तो ये हो गया हमारा प्रोफेज 2 ऑफ मियोसिस 2। अब हम लोग पढ़ते हैं मेटाफेज 2।
मेटाफेज 2। मेटाफेज 2 में क्या होगा कि अगर ये हमारा मियोसिस 1 के बाद ये सेल बना था, तो इसमें कितने क्रोमोसोम्स थे? 23 क्रोमोसोम्स बने थे। तो यहाँ पर एक मेटाफेजिक प्लेट थे, मेटाफेजिक प्लेट बनेगा, उसमें 23 क्रोमोसोम्स हमारा अलाइन हो जाएगा, 23 क्रोमोसोम्स अलाइन हो जाएगा। अगर आप याद करें कि मेटाफेज ऑफ माइटोसिस में भी एक ही सेल एक ही प्लेट बना था हमारा मेटाफेजिक प्लेट, उसमें 46 क्रोमोसोम्स अलाइन हुए थे। लेकिन अभी मियोसिस 1 के बाद इसमें तो 23 क्रोमोसोम्स ही तो आए ना, तो इसमें 23 क्रोमोसोम्स एक मेटाफेजिक प्लेट पर अलाइन हो जाएंगे। और वो जो दूसरा सेल्स बना था उसमें भी यही होंगे। अगर इसमें ये क्रोमोसोम है तो उसके इस पोजीशन पे होमोलोगस क्रोमोसोम्स अलाइन हो जाएंगे, इसके होमोलोगस क्रोमोसोम्स, इसके मतलब अगर ये दूसरा सेल मियोसिस 1 के बाद बना तो मैं उसको नहीं बना रहा हूं, ठीक है। यहाँ पर सेंट्रियोल और एस्टर रेज और स्पिंडल फाइबर्स इस तरह से इसके काइनेटोकोर से अटैच हो जाएंगे। सेम टू सेम है हमारा मेटाफेज ऑफ माइटोसिस। अब एनाफेज में क्या होगा कि ये जो सेंट्रोमियर है, इसका ये स्प्लिट हो जाएगा, ये जो सेंट्रोमियर है ये स्प्लिट हो जाएगा। सेम टू सेम एनाफेज ऑफ माइटोसिस, लेकिन यहाँ पर तो 23 क्रोमोसोम्स है, वहां पर एनाफेज ऑफ माइटोसिस में 46 क्रोमोसोम्स थे। तो 46 क्रोमोसोम्स में सेंट्रोमियर स्प्लिट हुए थे, तो वहां पर क्रोमोसोम नंबर 92 हो गया था स्प्लिट होने के बाद। अभी यहाँ पर 23 क्रोमोसोम्स है, तो सेंट्रोमियर स्प्लिट होने के बाद हमारा कितना 46 क्रोमोसोम्स हो जाएंगे। अभी हमारा 2 क्रोमेटिड्स इक्विवेलेंट टू 1 क्रोमोसोम्स, एनाफेज होने के बाद 1 क्रोमेटिड इक्विवेलेंट टू 1 क्रोमोसोम। अगर हम एनाफेज 2 की बात करें, तो ये हमारा जो है मियोसिस 1 होने के बाद हम एक सेल ले रहे हैं, तो यहाँ पर क्या होगा कि सेंट्रोमियर स्प्लिट हुआ, तो ये क्रोमोसोम हमारे जो क्रोमेटिड थे 1 क्रोमेटिड इक्विवेलेंट टू 1 क्रोमोसोम। अभी ये ऐसे ही है, ये ऐसा ही है, लेकिन यहाँ पर जो स्पिंडल फाइबर्स अटैच हो गए हैं इसलिए ये ऐसा लग रहा है। ये एक्चुअली ये है ऐसा ही, लेकिन यहाँ पर सेंट्रोमियर स्पिंडल फाइबर से इसको खींच रहा है, इसलिए ये दोनों आर्म्स ऐसे हो गए हैं, तो इसीलिए ये ऐसे हो गए हैं। ये ऐसा ही है, लेकिन स्पिंडल फाइबर इनको खींच रहा है, इसलिए दो आर्म्स पीछे हो गए। तो अभी तो पहले क्या था कि 2 क्रोमेटिड्स इक्विवेलेंट टू 1 क्रोमोसोम, अभी हो गया हमारा 1 क्रोमेटिड इक्विवेलेंट टू 1 क्रोमोसोम, यानी अभी क्रोमोसोम्स कितने हो गए एक सेल में 46 क्रोमोसोम्स हो गए। वहां पर कितना हो गया था? अगर हम एनाफेज ऑफ माइटोसिस की बात करें तो 46 में सेंट्रोमियर स्प्लिट होने के बाद 92 क्रोमोसोम्स हो गए थे, यहाँ पर 46 क्रोमोसोम्स हो गए। यहाँ पर सेंट्रियोल्स है, एस्टरेज है, माइक्रोट्यूब्यूल्स है। अब एनाफेज 1 होने के बाद अगर ये 23 क्रोमोसोम्स यहाँ पहुंच गए, 23 क्रोमोसोम्स यहाँ पर पहुंच गए, तो एनाफेज 2 के बाद हमारा क्या होगा? टेलोफेज 2, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपीयर होना शुरू हो जाएगा, न्यूक्लियोलस रीअपीयर होना शुरू हो जाएगा, और जो हमारे जो सेल ऑर्गेनल्स डिसअपीयर हुए थे वो रीअपीयर, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, और फिर से हमारा जो साइटोकाइनेसिस हो जाएगा। कुछ सेल्स में सक्सेसिव साइटोकाइनेसिस की अगर हम बात करें, इसके बाद साइटोकाइनेसिस होगा, तो कुछ सेल्स में सक्सेसिव साइटोकाइनेसिस होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि मियोसिस 1 होने के बाद 2 सेल्स बने, मियोसिस 1 होने के बाद, यहां तक अगर क्लियर है तो फिर आगे बढ़ते हैं। कुछ सेल्स में देयर आर सम सेल्स वेयर सक्सेसिव साइटोकाइनेसिस टेक्स प्लेस। जैसे कि मैं आपको बताया मियोसिस 1 के बाद हमारा क्या 2 सेल्स बने, मियोसिस 1 के बाद 2 सेल्स बने, और फिर मियोसिस 2 अगर इसमें हुआ तो इसमें 2 सेल्स बने। मियोसिस 1 होने के बाद 2 सेल्स बने, और मियोसिस 2 होने के बाद ये इसमें अगर मियोसिस 2 बनेगा तो ये कितना सेल्स देगा? तो मियोसिस अगर इसमें 2 होगा, अगर इस सेल्स में मियोसिस 2 होगा तो एट द एंड 2 सेल्स बनेगा, और इसमें मियोसिस 2 होगा तो इसमें 2 सेल्स बनेंगे, तो टोटल 4 सेल्स बने। अगर हम सक्सेसिव साइटोकाइनेसिस की बात करें, मियोसिस 1 के बाद साइटोकाइनेसिस हुआ तो 2 सेल, फिर मियोसिस 2 के बाद अगर इसमें साइटोकाइनेसिस हुआ तो फिर 2 सेल, इसमें ही साइटोकाइनेसिस हुआ 2 सेल, इसको बोलते हैं सक्सेसिव साइटोकाइनेसिस। ये हमारा मोस्ट ऑफ द मोनोकोट्स में होता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द डाइकोट्स और हायर प्लांट्स में हायर प्लांट्स तो है ही,
मोनोकोट्स। तो अगर मोस्ट ऑफ द एनिमल सेल्स और अदर प्लांट सेल्स की बात करें तो उसमें क्या होता है कि सक्सेसिव साइटोकिनेसिस नहीं होता है। जैसे कि ये एक सेल है, इसमें हमारा मियोसिस 1 हुआ तो ये ऐसे बन गया, मियोसिस 2 हुआ तो ऐसे हुआ, और मियोसिस 2 होने के बाद एकदम से फिर ये अलग ये अलग ये अलग ये अलग हो जाता है। तो ये हो गया हमारा साइटोकिनेसिस का कुछ आइडिया। अब हम बात करते हैं कि क्रोमोसोम नंबर, क्रोमोसोम अमाउंट, ये सब की बात कर लेते हैं एक बार, ये इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेते हैं, ठीक है। तो मैं बोलते जा रहा हूं, आप जरा ध्यान देते चलिए। जैसे कि जैसे हमारा सेल साइकिल शुरू होने से पहले हमारा 46 क्रोमोसोम्स था, 46 क्रोमोसोम्स थे और अमाउंट था 2 पिकोग्राम, ठीक है। अब प्रोफेज 1 हुआ, सॉरी G1 फेज में 46 क्रोमोसोम्स, अमाउंट 2 पिकोग्राम। S फेज में क्रोमोसोम नंबर 46, डीएनए अमाउंट आफ्टर S फेज इट विल बी 4 पिकोग्राम। 46 इसको आफ्टर G1 फेज, G2 फेज में भी 46 क्रोमोसोम्स होंगे, 4 पिकोग्राम हो जाएंगे। फिर प्रोफेज 1, फिर प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टेलोफेज 1, ठीक है। इसमें हमारे क्रोमोसोम्स कितने होंगे 46, और अगर 2 पिकोग्राम से शुरुआत किए तो S आफ्टर S फेज इट विल बी 4 पिकोग्राम। तो प्रोफेज 1 तो हमारा S फेज के बाद आता है तो 4 पिकोग्राम हो जाएगा यहाँ पर, क्रोमोसोम अमाउंट 4 पिकोग्राम। मेटाफेज 1 में भी 46 क्रोमोसोम 4 पिकोग्राम। एनाफेज 1 में क्या होगा कि हमारे होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट होते हैं, तो 23 क्रोमोसोम्स ऊपर गए थे, 23 क्रोमोसोम्स नीचे गए थे। तो अभी एक सेल में तो अभी तक तो 46 क्रोमोसोम्स ही है और क्रोमोसोम अमाउंट 4 पिकोग्राम है। टेलोफेज 1 अगर हम सक्सेसिव साइटोकिनेसिस की बात करें, अगर एक सेल बन गया है और मियोसिस 1 के बाद 2 सेल हमको अगर ऑब्टेन होते हैं तो इसमें हमारा क्रोमोसोम कितना गया, हाफ गया, यानी 23 क्रोमोसोम्स और 2 पिकोग्राम, ठीक है। 23 क्रोमोसोम्स और 2 पिकोग्राम। अब हम बात करते हैं प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 और टेलोफेज 2। क्रोमोसोम नंबर और क्रोमोसोम अमाउंट की बात करते हैं। तो प्रोफेज 2 में क्रोमोसोम नंबर हमको एक सेल में कितना मिला 23, 2 पिकोग्राम। यहाँ मेटाफेज में भी क्या होगा कि एक मेटाफेजिक प्लेट में 23 क्रोमोसोम्स अलाइन हुए थे, तो अभी भी हमारा 23 क्रोमोसोम्स है, क्रोमोसोम अमाउंट 2 पिकोग्राम। एनाफेज 2 में क्या हुआ था कि सेंट्रोमेयर स्प्लिट हुआ था, तो क्रोमोसोम नंबर हमारे डबल हो गए थे, क्रोमोसोम नंबर हमारे डबल हो गए थे, यानी कि 46 क्रोमोसोम्स हमको मिलेगा एक सेल में, और अमाउंट तो उतना ही रहेगा 2 पिकोग्राम। 2 पिकोग्राम क्यों? क्योंकि इंटरकाइनेसिस में हमारा डीएनए का रेप्लिकेशन नहीं हुआ, इसलिए हमारा यहाँ पर टेलोफेज 1 के बाद 2 पिकोग्राम और प्रोफेज 2 में भी 2 पिकोग्राम ही मिल रहा है, क्योंकि इंटरकाइनेसिस में डीएनए का रेप्लिकेशन नहीं हुआ। टेलोफेज 1 में क्या, टेलोफेज 2 में हमारा सेल्स में 23 क्रोमोसोम्स एक पोल में गए, 23 क्रोमोसोम्स अनदर पोल में गए, मतलब एक सेल में अभी भी 46 क्रोमोसोम्स है, तो 46 क्रोमोसोम यहाँ पर 46 क्रोमोसोम्स और अभी भी 2 पिकोग्राम है। आफ्टर टेलोफेज वहां पर जब साइटोकाइनेसिस हो जाएगा, तो साइटोकाइनेसिस के बाद हमको मिलेगा 23 क्रोमोसोम्स 1 पिकोग्राम, और यहाँ पर दूसरे सेल्स में 23 पिकोग्राम, सॉरी 23 क्रोमोसोम्स 1 पिकोग्राम। इसका मतलब एट द एंड ऑफ meiosis, chromosome number as well as chromosome number as well as chromosome amount reduced by half. तो सिग्निफिकेंस देख लेते हैं माइटोसिस और मेयोसिस का। माइटोसिस का सिग्निफिकेंस है हमारा कि जो बॉडी सेल्स जो हमारे जो कट जाते हैं, वोंड हो जाते हैं, उनको रिपेयर के लिए हमारा माइटोसिस जरूरी होता है। माइटोसिस ग्रोथ के लिए जरूरी होता है, जो हमारे सोमेटिक सेल्स में ग्रोथ होते हैं उनके लिए जरूरी होता है हमारा माइटोसिस। मेयोसिस क्या करता है कि क्रोमोसोम नंबर स्पीसीज टू स्पेसिफिक कांस्टेंट रहता है, कि अगर ये 46 अगर ये 23 होता, अगर हमको गैमेट में तो हमारा मेयोसिस हुआ तो 46 क्रोमोसोम्स रिड्यूस होकर 23 क्रोमोसोम्स हुआ, लेकिन हमारा जो जाइगोट बनता है वो 2 गैमेट का फ्यूजन से हमको जाइगोट बनता है, फिर जाइगोट में माइटोसिस होकर हमारा जो कंप्लीट बॉडी स्ट्रक्चर है वो हमारा बनता है जाइगोट में माइटोसिस होकर।
तो जाइगोट कैसे बना, दो गैमेट से बनने के, और दो गैमेट का जो क्रोमोसोम्स नंबर थे वो हैप्लॉइड थे। अगर वो हैप्लॉइड नहीं होता, अगर गैमेट का क्रोमोसोम नंबर अगर डिप्लॉइड होता तो जाइगोट कितना हो जाता, टेट्राप्लॉइड। फिर उससे कुछ बनता तो वो तो बहुत क्रोमोसोम नंबर तो बढ़ते जाते जनरेशन टू जनरेशन लाखों करोड़ों मिलियन ट्रिलियंस में पहुंच जाते। तो वो क्या हो करता है कि मियोसिस को देखने में ऐसा लगता है कि क्रोमोसोम नंबर को हाफ कर दिया, क्रोमोसोम नंबर को हाफ किया, लेकिन नेक्स्ट जनरेशन में जैसे ही जब जाइगोट बनेगा तो वो क्रोमोसोम नंबर फिर से रिटेन हो जाएगा जो एक स्पीशीज का है। जैसे हमारा 46 क्रोमोसोम्स है, तो एक स्पीशीज का जो क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम नंबर है, वो उसको कांस्टेंट रखने के लिए मियोसिस बहुत जरूरी है। इसके बाद मियोसिस हमारा जर्मिनल वेरिएशन, क्योंकि मियोसिस में हमने पढ़ा कि पैकेटियन में क्रॉसिंग ओवर होता है, लेकिन माइटोसिस में हमने कहीं नहीं पढ़ा कि क्रॉसिंग ओवर होता है। तो मियोसिस हमारा जो है वो क्रॉसिंग ओवर वेरिएशंस लाने में यूज करता है। वेरिएशंस कैसा है, वेरिएशन जो ऑलरेडी अवेलेबल है। म्यूटेशन कैसा वेरिएशन करता है, वो न्यू एलील क्रिएट करता है, वो न्यू एलील पैदा करता है, लेकिन ये जो एलील है उसकी कॉम्बिनेशन उलट फ्लेट करके फिर नया कॉम्बिनेशन लेकर आता है मियोसिस 1। तो ये हमारा जर्मिनल वेरिएशंस के लिए है, जो कि यूज होता है हमारा नेचुरल सिलेक्शन वगैरह सब के लिए, बेटर सर्वाइवल के लिए। तो ये हो गया हमारा सम ऑफ द सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस एंड मियोसिस। दैट्स ऑल अबाउट सेल डिवीजन। थैंक यू।